extend a warm welcome to all of you to the 4-day staff development program on smart work and institutional excellence. At Geetharanjan International Business School, the non-teaching and administrative staff play a pivotal role in the smooth functioning of the institution. This SDP aims to strengthen the institutional workforce and addresses the key challenges faced by them in leveraging the AI-enabled workplaces. The program will include 4 days of interactive sessions, hands-on training sessions delivered by experienced resource persons. Each day will cover specific sessions starting from Google Tools on day 1, followed by 3 days of extensive hands-on training of AI tools. I request Honorable Director Sir to give a brief welcome to all the participants. Our faculty members will be able to give you some sort of your skills which are required on day-to-day work. I will speak in Hindi because many of you will understand Hindi. क्लास में इंग्लिश ठीक लगता है, पर अपने नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर हिंदी में बोले तो आई विल बी एबल टू बेटर कनेक्ट विद यू. अच्छा कनेक्शन बनता है. Both languages you are comfortable directly with the students on day-to-day basis. But your interaction with the student is also happening on day-to-day basis, right? On one hand, where we do faculty development program to improve the faculty teaching skills, it is important for us to improve on your administrative skills and day-to-day skills on your software, whatever you are using, be it Excel or be it any artificial intelligence, MS Word, where you are going for typing the letters or you are going for processing the application. Okay? Last time we did something on office management. The reason was that you should be able to make you learn of what basic things are required in an office and how you should be going ahead and managing the office. The idea this time is that as the things are changing around us and we are dealing with big data now, where your load is increasing because the number of marks that you feed in on the Excel sheet, the number of notices that you are producing on day-to-day basis, the file work that you are doing on the application being received from the student, or the mark sheet which you are giving to the student as the results are coming, आपका काम जो है वो day-to-day basis पे बढ़ता जाता है. In order to survive in such an environment where our work is not reducing every day, but it is having an incremental increase every day. आज अगर 7 point के ऊपर था तो वो कल 7.1 पे, फिर 7.2 पे और अल्टीमेटली वो 9, 10 तक होता हुआ जा रहा है. कुछ नए लोग जो हमारे पास ज्वाइन करते हैं उनको इमीडिएटली बहुत ज़्यादा हेवी लगता है लोग कुछ दिनों के अंदर. तो जिन लोगों ने सीख लिया वो इस काम को फिर अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं और आगे कंट्रीब्यूट भी अच्छे से कर पा रहे हैं. कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं देखता हूँ हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर है वो मैं शेयर करूँगा, क्योंकि जब तक मैं शेयर नहीं करूँगा आपको नहीं पता लगेगा हाउ थिंग्स आर बीइंग यूज्ड अपॉन, जो मैं कैसी चीज़ों को देख रहा हूँ. अब तक हमारा फाइल वर्क स्ट्रीमलाइन हो गया, ठीक है. सो ऑल द प्रोग्राम सेक्रेटरीज एंड सेक्रेटरी इन द IATC सेल, आपने फाइल वर्क को अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन कर दिया. फाइल ओरिजिनेट डाटा सेंटर से हो रही है और फाइल वापस डाटा सेंटर में ठीक तरीके से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है. पर कहाँ पे दिक्कत आती है? एक दिक्कत हमें आती है कि अगर आपको बाई चांस हम बोल दें कि एक लेटर बनाओ जिसका कि आपके पास फॉर्मेट नहीं है, तो आप गलत अंग्रेजी लिख के ले आते हो हमारे पास. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे ही ऐसे कर देते हो, पर कुछ जो मेरे पास आते हैं नोटिस बन के उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ये वाली देखने को मिलती है. दूसरा, हम सीनियर अथॉरिटीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंसी शो करते हैं, राइट, जबकि आपके लेवल के ऊपर सीनियर्स को आप पे डिपेंडेंस हो जाती है, ठीक है. अगर मैंने कहीं और भी काम किया है एज डायरेक्टर तो आई गॉट डिपेंडेंट ऑन माई पर्सनल सेक्रेटरी, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करके मेरे को दे रहे थे कि मेरे को सिर्फ साइन करना पड़ता था, राइट. योर रोल एज अ सपोर्टिंग स्टाफ, जब अब ये वर्ड मैंने यूज़ किया सपोर्टिंग स्टाफ, वो सही मायने में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें. किसी भी दफ्तर में, any office, a senior person becomes helpless
till the time he is having a good supporting staff. ऑफिस जब हम बोलते हैं तो वाइस चांसलर को छोड़ के who comes from an academic background, he is having personal secretary and he is having all non-teaching staff there, right? Who goes through every file, goes in for marking the objections on the file, goes in for improving the file content, asks for the extra documents that are required, and ultimately puts a file to the vice chancellor in the final form where he only has to put the signature. Right? Wherever I worked before, I also had enjoyed this type of facility. ज़्यादातर ये ध्यान किया कि आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टूल्स हैं, राइट, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर Copilot 365 आ गया, right? You have ChatGPT. You have 10 number of apps which are working on artificial intelligence. So we want that you should know about it. You should learn how to use those apps and those softwares for yourself, so that you can improve on the work that you are doing. काम सबको पता है हमें क्या करना है, और उस काम की क्वालिटी को कैसे आगे इम्प्रूव करना है, उसके लिए ये ट्रेनिंग हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है. ठीक है. दूसरा एक चीज़ आपको और ध्यान करना है, जो चीज़ मैंने सीख ली वो तो मेरी हो गई, पर जो चीज़ मैं दूसरों के साथ बांटूंगा वो और ज़्यादा मेरी हो जाती है. पर उसका फ़ायदा क्या होता है? The more knowledge you share, the better knowledgeable you become. At the same time, you also train your peer. जब आप किसी को ट्रेन करते हो और उसके अंदर कोई स्किल सेट पैदा करते हो, तो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है दैट इज ऑफ डिफरेंट लेवल, राइट? और दूसरे को ट्रेन करके आपने उसको भी इनेबल कर दिया, तो कल को अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो दैट पर्सन कैन ऑलवेज हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प हिम इन लर्निंग सर्टेन थिंग्स. तो हमें ये कल्चर भी आपस में क्रिएट करनी है कि अगर हमसे कोई काम करने के लिए बोले तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि एक तो मेरे पे लोड आ रहा है, मुझे ये लगना चाहिए कि अच्छा ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि इसका काम मेरे को सीखने को मिलेगा. बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर कॉम्पिटेंट यू आर मेकिंग योरसेल्फ, राइट? कॉम्पिटेंसी कोई सिखाने नहीं आएगा. कॉम्पिटेंसी अगर आप खुद उस ओरिएंटेशन में हो कि मुझे चीज़ें सीखनी है तो आप अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लो. कॉलेज से पास होने के बाद या डिप्लोमा क्लियर करने के बाद जो भी हमने पढ़ाई करी उसमें हमें जो भी प्रोफेशनल नॉलेज मिली वो वहाँ तक खत्म. उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपने गेन करी बाय वन वे और दी अदर, द बेस्ट वे वाज दैट यू आर एंगेज इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी. उस एक्टिविटी में एंगेज होकर जो आपने लर्निंग कर ली वो लर्निंग आपकी अपनी है, राइट? तो आपको जब उससे भागो मत, never run away from the load. लोड एक दिन के लिए राइज करेगा, दूसरे दिन अपने आप नीचे आ जाएगा. पर वो जब राइज किया और आपने जो चीज़ें सीख ली उस समय, वो आपको कोई और नहीं सिखाएगा. वो सिचुएशन आई थी आपको सिखाने के लिए. लाइफ में मैंने कैसे प्रोग्रेस किया, मैंने अपने डायरेक्टर को कभी ना नहीं करी. एडमिशन करानी है सर करा देंगे, एडमिशन काउंसलिंग करनी है सर करा देंगे, एग्जामिनेशन सेंटर हैंडल करना सर करवा दूंगा. जो चीज़ बोली मैंने अब आज तक भी मैं हाँ करता हूँ हर चीज़ को. The vice chairman asked me to do it. I say yes, I will do it. मुश्किलें आएंगी, पर जो मुश्किलें आएंगी वो भी तो ओवरकम मैं ही कर रहा हूँ. जितने लोगों से मैं बात करता हूँ वो आगे तक पहुँच रहा हूँ, वो मेरे कॉन्टैक्ट ही तो बन रहे हैं. तो मेरा तो फायदा ही हो रहा है इसके अंदर, हर चीज़ के अंदर. और वो नॉलेज मेरी बनती है, वो रिलेशन मेरे बन जाते हैं. ठीक है. तो उसी तरीके से अगर आप उस ओरिएंटेशन के साथ चलो कि कोई भी काम जो आपकी तरफ आया वो चैलेंज नहीं है, और अगर है तो वो कुछ टाइम के लिए, उतना ही चैलेंज है कि डर के आगे जीत जो है ना, जो ऐड आप देखते हो ये हिसाब के साथ वैसे ही चल रहा है. आपको चीज़ें लर्न करनी है, कनेक्ट करना है और आगे चल पाना है. इतना ही आपको करना है. तो अब इस ट्रेनिंग के अंदर जो चीज़ें आपको करनी है और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम सवाल पूछो जो ट्रेनर्स आपके पास आ रहे हैं. कॉग्निजेंट से लास्ट डे पे एक लेडी आएगी, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 पायलट जो है उसको कैसे यूज़ करना है, MS ऑफिस के अंदर क्या क्या AI टूल्स इनबिल्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं. ठीक. जब आप लोग हम लोगों के साथ भी काम करते हो तो आप पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ में AI कैसे लगाएंगे,
मेरा जैसा टीचर तो आपको उधर बैठा के सिखाना शुरू कर देगा, जैसे आधा घंटा लगा मेरे साथ, राइट, और उसके बाद लर्निंग हो जाती है। पर वो ओरिएंटेशन आपकी होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे वो टाइम निकालना है जिससे कि मैं पूछ के सर से चीज़ सीख सकूँ। मतलब में हम अपने कामों के अंदर बिजी रहते हैं, ये टाइम हमको कभी कभी मिलता है और यूजली उस टाइम पे मिलता है जब सेमेस्टर ब्रेक्स होता है, राइट, व्हेन वी सिट टुगेदर। अब इस पूरे साल में हमने अलग अलग तरीके की चीज़ें करी, अलग अलग एक्सपीरियंस है हमारे, अलग अलग काम को हम कर रहे हैं। अब जब बैठ के हम शेयर करते हैं आपस में तो आपको पता लगेगा कि हम लोग पूरा साल क्या करते हैं। ठीक, जब आप ये चीज़ें शेयर करते हो तो एक दूसरे के साथ एक तो पर्सनल बॉन्डिंग अच्छी बनती है, दूसरा पर्सनल लर्निंग अच्छी होती है, तीसरा आपकी बॉन्डिंग जो फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ बनती है। आपको पता लगता है कि ये फैकल्टी मेंबर हमको इस तरीके की हेल्प कर सकते हैं और वो हेल्प आपको मिलनी चाहिए। लर्निंग नॉलेज किसी भी तरीके की, एनी टाइप ऑफ नॉलेज विच यू गेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नेवर एवर गोज वेस्ट, नेवर। अगर आप सिर्फ इतनी भी ऑब्जर्वेशन करते हो कि एक आदमी दूसरे को क्या सिखा रहा है और आपने ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया, यू नेवर नो व्हेन द सिचुएशन कम्स व्हेन यू नीड दैट पर्टिकुलर नॉलेज एंड दैट ऑब्जर्वेशन विल हेल्प यू देन इन ओवरकमिंग दैट पर्टिकुलर डिफिकल्टी। ठीक है, दैट्स द एंजॉयमेंट ऑफ लर्निंग। चीज़ों को सीखो, इधर समझ में नहीं आया उसके ऊपर यूट्यूब पे जाकर सीखो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन जो फैकल्टी ने दी उनके कीवर्ड्स लिख लो कि मैडम ने ये चीज़ें बोली थी, यूट्यूब पे जाके वो डालो। अब आपको दूसरा ट्रेनर वही चीज़ अच्छी से बताते हुए देखेंगे। तो लर्न करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास, जो 2 घंटे में इधर एक्सपोजर होगा, उस एक्सपोजर से लर्निंग करने के बाद आगे अपने आप को और कॉम्पिटेंट बनाना है, क्योंकि नॉलेज तो उस बारे में सारी जगह, हम आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहे हैं कि जो स्किल सेट अगर आपका कहीं पे कम है तो वो भी और अच्छा हो जाए। That's what we are trying to do, right? We also keep on learning new things every day, not only in teaching but in administrative things also. Similarly, you should also be learning new things every day. जिसने सीखना छोड़ दिया उसका पतन शुरू। ठीक है, फाइल कैसे बनानी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब रेगुलेटरी बॉडीज आती हैं, जैक आया, राइट, या नैक आया, या फी फिक्सेशन कमेटी होती है, तो सारे हमसे डॉक्यूमेंट्स ही मांगते। एक टाइम ऐसा हो गया था कि वो डॉक्यूमेंट्स के पीछे हमें भागना पड़ रहा था, क्योंकि डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहा था हमें, तो क्रिएट करना पड़ा। अब जो सिचुएशन है कोई ऐसे भगदड़ वाली नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें क्रिएट ना करने पड़े, जो बन रहा है उसी को संभाल लें हम अच्छी तरीके से, तो हमें आगे वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो हमें पीछे 2 साल पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट थिंग मैं आपको ये बात बोलूँगा, ऑल ऑफ यू आर इन वन वे और द अदर कनेक्टेड टू अ फैकल्टी मेंबर, टू द डायरेक्टर, टू योरसेल्फ, टू द हायर अथॉरिटी। आप कनेक्टेड हो हमसे किसी ना किसी तरीके से। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्वालिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, कोई काम जो आप करो क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, बेशक वो प्रिंटिंग ऑफ अ पेपर ही है। आपने एक प्रिंट निकाला, उसके ऊपर लंबी सी लाइन आ गई, वो डॉक्यूमेंट नहीं लाना मेरे सामने, और उस डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव करवाना किससे? बोलो मेरे प्रिंटर का कार्ट्रिज चेंज करो, या इसका अगर ड्रम खराब हो गया तो ड्रम चेंज करवाओ, राइट? बट द मोमेंट यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, यू योरसेल्फ कंट्रीब्यूट टू द बैड क्वालिटी। और वो बैड क्वालिटी क्रिएशन किसने कर दी? वो आपके नाम पे आती है, क्योंकि आप वो काम करना नहीं चाहते थे और आपने वो काम कर दिया, और वो एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाती है। हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज, हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज, और कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम फेल होता है। लास्ट, चीज़ें लर्न करो पर काम से कभी मत डरो। यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, कभी डांट पड़ गई, कभी किसी ने बोल दिया कुछ, उससे पीछे मत हटो।
कम से कम अपने आप को इतना एक्सप्रेस करना सीखो कि आपको क्या दिक्कत है, हो सकता है दूसरे को समझ में आए। और अगर नहीं समझ में आती बात, फिर फैसला हमारे हाथ में, वो तो आज भी कर लेते हैं। और उस फैसले पर पहुंचने के लिए कम से कम 5 बार वेट करो, तभी ये सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, थोड़े थोड़े पैसे के लिए अगर आप जंप करोगे तो एक लर्निंग साइकिल आपका ब्रेक होगा। इस इंस्टीट्यूशन में बेस्ट पार्ट ये है कि यू विल लर्न, नए चैलेंजेस जो आपके सामने आएंगे तो चैलेंजेस के थ्रू आप लर्न करें। दूसरे इंस्टीट्यूशन में ऐसे चैलेंजेस नहीं आते, एक फिक्स प्रोसेस चल रहा है, उसी तरीके से धीरे धीरे चलता है। कई जगह तो नए चैलेंजेस को लेना ही नहीं चाहते, दे आर आउटसोर्सिंग ऑल दोस चैलेंजेस, दे आर पेइंग मनी। यहाँ पे वो चैलेंजेस हम खुद लेते हैं और उसको खुद को अपने आप को सिखा के आगे चलते हैं, राइट। इस यंग एज के अंदर मेरी तो क्रॉस 50, राइट, मेरे सामने ये technical expertise with business acumen, enhancing her teaching and research. An active researcher, she has published extensively in ABDC, UGC, and other peer-reviewed journals. She is the author of Entrepreneur Development at Management and has contributed to several medical academic volumes. Her active participation in national and international conferences highlights her commitment to academic excellence and engagement with the scholarly community. I request Ma'am to take forward the session. Thank you very much for the wonderful and my namaste to all of you. I hope I'll be able to give you something that I know, or rather give you in the sense I should be able to share with you whatever I know. Okay? So our session will be there for approx. I'll try to make it, let's say, by 4:40. I'll try to wrap up the session. Today what we will see would be, now what you see here. First I would like to ask you randomly, I would need some answers from you. When do you use computers in your life? Or what do you use computers in your life? You're using only at work. What about your phone? Open your phone. Do you have a finger touch or you show your face? How do you do that? So how do you think your phone is able to recognize that? यहाँ कॉलेज में जब आते हैं ना, when you enter the door और main gate जब आते हैं security area में जब हम आते हैं, what we do is we show our face on that machine and then वो धक्का लगाते हैं फ्लोर को, धक्का वो खुल जाता है, ऐसे होता है। Then again one more thing that we do is we want to mark our attendance. Attendance के लिए हम क्या करते हैं? Again we show our face somewhere at the reception and it marks our entry and while going we give our exit. How does it happen? Okay, what is the trend? What is the trick behind it? What is the kind of software or what hardware is used? That is what we will see in some of the other. Okay, so our topic for today would be introduction to AI. That is, AI is what? Anybody? Artificial intelligence. Artificial intelligence. Okay, and its role in education. What is it? So here, what I can say is people are sitting from the library, from the lab. People are there from the admin staff. People are there from the HR. People are also there from placement. Okay, and even our admission team is here. So from every area, from our college, people are sitting here. So I'll make sure that whatever we'll be learning today is helpful to each and every one. Okay, Google Tools we will be seeing. You must have even worked on this. Google Tools for administrative efficiency. We will see how you make forms. Let's say you want to make a form for taking a feedback from someone. How will you do that? आपको एक लीव फॉर्म बनाना है जहाँ पर you want to put a start date and end date. How will you do that? Okay. Similarly, in this documents you can use on the web. On the cloud you can make it folders instead of putting your files or your folders on LAN on your desktop and simply occupy the space. Right now हम data कैसे सेव करते हैं? हम faculty कॉमन में जाके सेव करते हैं, faculty में सेव करते हैं. वहाँ पर कोई ना कोई थोड़ी ना थोड़ी वो what is doing is कहीं पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि वो बोलता है कि there is no
आउटलुक और गूगल ड्राइव। जो आप आउटलुक में अभी करेंगे सेम आप गूगल ड्राइव में भी कर सकते हैं। एंड लर्न हाउ टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी। जहाँ पर आप भी काम कर रहे हो, आप भी इस मंदिर के लिए काम कर रहे हो, मैं भी इस मंदिर के लिए भी काम कर रही हूँ। वर्क प्लेस हमारा मंदिर है, आप भी उसी के लिए कर रहे हैं। हम इसकी एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी को, जो हम काम कर रहे हैं उसको कैसे बढ़ाएं, वो हमने समझना है आज। तो समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। एआई मैंने लिखा बट वो है क्या। मैं बोल रही हूँ एआई रेफर्स टू मशीन ऑफ रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। नाउ लाइक आई टोल्ड यू, अभी ऑन दिस फोन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पुटिंग माय फिंगर। मैंने अपना फिंगर का प्रिंट, अभी मैं इसी पे कोई और फिंगर लूँ तो क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। मैंने क्या किया है, मैंने उसको यही मेरा इंडेक्स फिंगर ऑफ माय राइट हैंड हैव गिवन, दैट इज हाउ इट इज अनलॉक। तो दिस इज अ मशीन, in this there is a software, or the software is trying to recognize my fingerprints, and that is what has been created using a programming language. एक प्रोग्राम बनाया है जिसके थ्रू ये पहचान रहा है उसको। सेम चीज हम अपने बैंक अकाउंट में भी करते हैं आजकल। बैंक अकाउंट फॉर एग्जांपल, बैंक अकाउंट में हम 4 डिजिट आपके पास फोन में, आप HDFC का ही हमने ऐप अगर डाउनलोड किया उसमें हम अपने 4 डिजिट नंबर्स लेते हैं, या फिर हम अपना फिंगरप्रिंट लेते हैं, या कुछ और पासवर्ड हमने रखा है उसके थ्रू हम उसको अनलॉक करते हैं, हम अपने ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, सेम थिंग गोज देयर ऑल्सो। So here I am saying AI refers to machines performing tasks that require human intelligence. एक मशीन वो आपके लिए कर रही है जो एक ह्यूमन को करना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को करनी चाहिए। It means computers or machines doing tasks that usually need human intelligence. It also includes learning, reasoning, problem solving, learn करना, reason करना, problem solve करना, understand करना, language को समझना। अभी जैसे IoT का मतलब पता है, IoT सुना है किसी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT टर्म सुना, ये भी उसी तरह का लैंग्वेज है। लेट्स से मेरे पास एक फोन में, मैं फिर से AI के ऊपर ही आ रही हूँ, मेरे फोन में एक ऐसा एप्लीकेशन है कि मैं, और मेरे घर में स्टिल कंडीशन अगेन एक ही चाहिए, मेरे पास यहाँ पर इंटरनेट मेरे पास होना चाहिए और मेरे घर में वाईफाई चालू हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में जो वाईफाई लगा है वो शुरू हो, और जैसे मैं जाऊँ मेरे AC ऑन हो, मुझे कमरा ठंडा मिले। मैं चाहती हूँ मुझे मेरा कमरा ठंडा मिले। मैं गर्मी से जाती हूँ, मुझे चाहिए कि कमरा ठंडा मिले। AC भी घर में तो कोई होता नहीं, AC ऑन कौन करेगा। सो यहाँ पर बैठे इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं अपने घर का AC शुरू कर सकती हूँ। मतलब मैंने क्या किया, मैंने उस चीज़ को किसी थिंग पे इम्प्लीमेंट किया। मैंने चीज़ पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया। किसी भी चीज़ पे, वॉशिंग मशीन चला दूँ, चीज़ों पे मैंने उस इंटरनेट के थ्रू मैंने उसमें इम्प्लीमेंट किया। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, आई एम ट्राइंग टू लर्न, रीजन, प्रॉब्लम सॉल्व, अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड परसेप्शन ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स। आगे आके एग्जाम्पल लेते हैं इसकी डेली लाइफ में। AI की एग्जाम्पल क्या है, गूगल मैप, आप लोग सब ड्राइव करते हो, जानते हैं उस चीज़ को, राइट। सो गूगल मैप सजेस्ट द फास्टेस्ट वे, कहाँ से आपने लेना है, कहाँ से जाना है। मैं राइट लूँगी तो कितनी देर में पहुँचूंगी, लेफ्ट लूँगी तो कितनी देर में पहुँचूंगी, दैट इज व्हाट आई नो। यूट्यूब शोज वीडियोज यू मे लाइक। लेट्स से आपने कल कोई वीडियो देखा था, या एक हफ्ते से आप एक पर्टिकुलर भजन को ही सुन रहे हैं, आप एक्सेप्ट
थोड़ा सा डालती हूँ ऑटोमेटिकली आ जाए, वो भी सिखाऊंगी। मैं सबको अपना ईमेल लगाते हैं मंजूर पठानिया विश्वास ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा, मैं सब एंटर करूँगी वो लेगा। ओके, वो भी दैट इज कॉल्ड एज योर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ जाते हैं AI करते हैं, गूगल मैप मैंने बताया, यूट्यूब बताया, व्हाट्सएप एक वन मोर थिंग है, मोबाइल फोन फेस रिकॉग्निशन को अनलॉक एंड जीमेल प्रोडक्टिव टेक्स्ट एंड ऑटो रिप्लाईज। ये थोड़ा सा मुझे फास्ट कवर करना है बिकॉज प्रैक्टिकल में आता है। AI अभी ये सब आप सब के लिए लाइब्रेरी में ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड कैटलॉग्स एंड डिजिटल एक्सेस यूजिंग फेस आईडी, ये भी अगर शुरू हो जाए। अभी तो कैसे होता है, अभी लाइब्रेरी में हम कैसे यूज करते हैं, वी गिव दोस फर्स्ट डिजिट्स फर्स्ट, आई थिंक मैं जैसे बोलती हूँ GIBA 00530 ऐसे बोलते हैं, मेरा आईडी लेते हैं वो, और फिर मेरे अकाउंट में कितनी बुक्स मैंने ली है या मैंने वापस करनी है, कैसे है वो उस तरह से हर एक बच्चे को उस तरह से। ओके, दैट इज फॉर द लाइब्रेरी सिस्टम, दैट इज ऑन द ERP, वी आर यूजिंग ERP। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, बायोमेट्रिक बाहर अभी कोई अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डिवाइसेस के अंदर आ नहीं सकता। नो अनऑथराइज्ड पर्सन कैन कम इनसाइड आवर डिवाइसेस, व्हाई? बिकॉज हमने ऐसे सिक्योरिटी मेंटेन करके रखी है, और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी कैमरेस लगे हैं सब। सिमिलरली वहाँ पर जब होता है सिक्योरिटी पोजीशन कौन है, फेस दिखाइए तो ऐसे नहीं करेगा, ओल्ड टीचर है, ओल्ड टीचर कितनी ओल्ड टीचर है। ओके, तो यहाँ पर सिक्योरिटी रिकग्निशन बायोमेट्रिक सिस्टम, दिस इज द मेन बायोमेट्रिक, तो सबका बायोमेट्रिक डिफरेंट है, किसी के हाथ के फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, आइरिस सेम नहीं है, फेस अलग होता है। इनफैक्ट एयरपोर्ट की बात करूँ मैं, डिजिटल लॉगिन या डिजिटल एंट्री हम करते हैं, तो बेस्ट पीपल आते हैं। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ AI for admin staff, saves time and effort in routine tasks, improves accuracy and productivity, enables better services to students and staff, and supports data-driven decision making. इंट्रोडक्शन टू गूगल वर्कशॉप, ये भी हमने करना है, तो ये जब करेंगे तब हम देखते हैं इसको, बट इसमें हम क्या करेंगे कि गूगल ड्राइव क्या है या वर्कशॉप क्या है, आप उसमें फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें फोल्डर्स बनाएंगे, कैसे फाइल बनाएंगे, जो आप अपने फैकल्टी कमेंट में करते हैं या आपके डेस्कटॉप पे रखते हैं, वो इसमें ना करके हम डायरेक्टली उसके ड्राइव पे रखते हैं जो हम एक्सेस करें। ओके, वो हम इसमें देखेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट इसका बेनिफिट होगा। तो क्लाउड में हम रखेंगे उसको, स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड शेयर फाइल्स, मैनेज एक्सेस विद व्यू एंड एडिट परमिशंस, उसमें भी हम व्यू दे सकते हैं, जिसको मैंने इसको सिर्फ हाइडर अपॉन की पीपल ऑफ इधर ओनली शुड बी एबल टू सी, या ओनली स्पेसिफिक पीपल शुड बी एबल टू सी व्हाटएवर आई हैव क्रिएटेड, ये भी हम इसमें कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अगर कॉलेज के आईडी से ही लॉगिन करोगे तभी लॉगिन आईडी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप घर जाके इसको एक्सेस नहीं करना चाहते हो, वो भी मैं इसमें गाइड से दे सकती हूँ। ओके, तो कीप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बैकअप एंड अवेलेबल एनीवेयर। तो ये देखेंगे, एंड गूगल फॉर्म सर्वे, गूगल फॉर्म बोलो या आउटलुक का फॉर्म बोलो, सर्वेज एंड डेटा कलेक्टेड टूल, उसके फीचर्स हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस लाइक बना सकते हो, MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, इजी डिस्ट्रीब्यूशन बाय ईमेल्स हो सकता है, ऑटो जनरेटेड चार्ट्स हो सकते हैं। तो दिस वी विल बी सेइंग, नाउ वी कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट, दिस आई कम लेटर। Now I come to the practical part. मैम ने बैठ के सेम इनपुट दिए, इन्होंने अपने सिस्टम दिए, इन्होंने अपने सिस्टम दिए, बट पूछ रहे एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, बट इन्होंने जिस तरह से पूछा, the way she asked is different, the way she asked is different, both of them got a different output. Okay, so let's see how can we do it. अब यहाँ पर हम देखते हैं, ChatGPT में डाल दूँ, तो इसका फ्रीबी वर्जन है, आप ये भी ले सकते हैं। So here you have ChatGPT, यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ उसको। Now this is what the screen is. People have seen it. This is what the screen is. Okay, you can log in through it. In case if you want to log in, आपको log in करना है। log in करोगे तो क्या फायदा होगा कि जो आपने पहले किया है वो सेव हो जाएगा। समझो आपने किसी चीज़ पे पहले काम किया तो आपको सेव हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं ऐसे दिखा रही हूँ, लॉगिन करके, लॉगिन आप इसमें अगर लॉगिन क्रिएट करना चाहो वो भी कर सकते हो, या अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन यूज योर गूगल का आईडी है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका विंडो है जहाँ पर आपने अपना देना है। ये पूछ रहा है, कैन आई हेल्प यू, लेट्स से फर्स्ट आई से हाय, उसको हम बोलते हैं हाय, और मुझे एक अच्छा सा नोटिस ऐसा ही बना दे कि ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको वैसे का वैसा, वो आपको वैसे का वैसा बना के। Okay, this is how it will do it for you. So I'll just say hi, and this is
उसका रिप्लाई आगे हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ओके इट्स आई जस्ट गिव हिम अ स्मॉल इनपुट। जो भी मैं दे रही हूँ पुलिस सर क्या बोलना चाहेंगे इसको, क्या मांगना चाहेंगे इससे? चैट जीपीटी से आज क्या चाहिए? हाँ, कुछ है ना? हाँ जी जी बोलिए। How do we get AC here? हाउ डू वी गेट AC. Air conditioner. Air conditioner. We require AC. AC air conditioner. जय इसके भी हाथ में वो नहीं है। In fact, you are sitting, I'm standing and talking, so I exert more energy. Anyways, jokes apart, but the motive of telling this is, now let's say I give a prompt saying that I want to make a notice where बोलना है कि have to welcome people who are coming for the convocation. या मुझे एक नोटिस निकालना है, कॉन्वोकेशन नोटिस निकालना है। 20 जुलाई 2025 को हमारे कॉलेज में कॉन्वोकेशन है, ओके कॉन्वोकेशन इज देयर, मुझे एक ऐसा नोटिस बनाना है। सो 20 जुलाई 2025 इज अ कॉन्वोकेशन एट गीतारत्न इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल। यू हैव टू सेंड invite to all the students and tell them that they have been welcome. You have to register yourself at so and so link. आपको इस तरह का नोटिस बनाना है। क्या लिखेंगे प्रिया मैम, क्या लिखेंगे ऐसे? अगर मैं आपको बोलूँ वर्ड ओपन करो आप लिखो, क्या लिखोगे? वर्ड ओपन करके आपको लिखने बोलूँगी तो क्या लगेगा? पढ़िए क्यों नहीं लिखोगे? चलो क्या करते हैं हम बोलते हैं अपलोड करना है, मुझे ये कुछ अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है मुझे? वैसे में मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं देख लेती हूँ, लॉगिन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ से आप अटैच कर सकते हो लॉगिन करके। मैं लॉगिन करके भी दिखा देती हूँ आपको। मैं लॉगिन कर लेती हूँ अपने गूगल से। और एक पर्टिकुलर लेवल तक ये जो मैंने पहले यूज़ किया है, मुझे न्यू चैट लेनी है, इससे आए कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी है, कोई फोटो आपको अपलोड करना हो, यहाँ पर डेस्कटॉप पे देखते हैं अगर कुछ है, आई डोंट नो यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है, बट हम देख लेते हैं ये क्या है। AI एंड कंज्यूमर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये मैंने अपलोड किया डॉक्यूमेंट। मैं बोलूँगी मुझे इस डॉक्यूमेंट प्लीज़ रेफर दिस डॉक्यूमेंट एंड गिव मी अ समरी ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने नहीं पढ़ा, अपना आपने पढ़ा है, मुझे भी नहीं पता उसमें क्या, आपको भी नहीं पता क्या है उसमें। मैं इसको ये बोलूँगी कि रेफर द डॉक्यूमेंट दैट आई हैव अटैच्ड एंड गिव मी अ समरी। डॉक्यूमेंट को रेफर कर दिया, बोला हियर इज अटैच्ड। सो बोल रहे AI एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी माइंड मीट्स मशीन, ये उसका नाम है, ओके। एंड उसने ये समरी दी उस चैप्टर की, जो भी उसको लगा, डिफरेंट पॉइंट्स की समरी दी, केस स्टडी दी, मेक अ PPT एंड टेल हिम मेक अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन